Hi, my dear students. I hope you guys are doing well. Welcome to the session. So, this is the second episode of the series Decoding Tones. We've already had one session where we talked about the tone analytical. Now, in this particular video, we are going to discuss in detail about the expository tone. So, let's get started. My name is Juhi Narula. So, देखिए tones are important part because you get a lot of questions based on tones. So, what is the right approach to decode the tone based questions? One is grasp a very solid understanding of the passage. Until and unless you are clear with the passage, you will not be able to ace such questions. And while you are reading the passage, you need to understand the author's point of view, right? So what is the author's mental state? So basically we say how is the author writing the passage, that we have to find out. So you have to pay attention to a lot of modifiers that are used in the discussion. तो जो भी adjective adverbs use हो रहे हैं उनको आपको rightly पकड़ना है, decode करना है और question solving में इस्तेमाल करना है जो आपने idea generate किया है, right? So identify emotional keywords. Look for words that indicate emotion such as admiration, criticism, doubt or irony. So check for word choice and language. Does the author use neutral, positive or negative words? तो अब अगर हम ये बोले the reforms are well intentioned but impractical, तो आपको reforms को कैसे define किया? Well intentioned और impractical से ना, so you will be able to understand that the tone is critical in nature. So if I say my students are brilliant, so by observing the word brilliant you will be able to understand that okay, what is the POV of the teacher for her students, right? Brilliant students. Or if I say it's half cooked, knowledge will not help. So half cooked use कर रहे हैं, so that means the author is not having a very positive attitude. अब ध्यान रखिएगा कि when we are dealing with tone questions, it is not always the problem of not understanding the tones. At times where we lack is that we do not know the right meaning of the word that is presented as an option. So please work on vocabulary also, and also pay attention to decoding the tones. Initially we'll not be in a state to identify the tone as castigating or laudatory. Such difficult word predictions are challenging. So what do? We simply read the passage and try to decode, is the tone positive, negative and neutral? So positive negative को तो decode करना आसान होता ही है, neutral के लिए ही कि भी analytical और expository ऐसे neutral terms में क्या variation होता है वही समझने के लिए हम ये सीरीज को क्रिएट कराएं, ताकि आपको न्यूट्रल टोन्स में जो थिन लाइन डिफरेंस होता है वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए, ताकि ऑप्शंस पिक करने में कोई दुविधा ना हो, कोई चैलेंज ना हो, राइट? सो नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड द ओवरऑल इंटेंट. यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जब तक आपको पैसेज की ओवरऑल ग्रास्प नहीं होगी, सच questions will be difficult for you. So all the four general questions, so be it the main idea questions, be it the primary purpose questions, or be it the questions of tone or structure. In fact चारों question categories के लिए passage की holistic understanding होना ज़रूरी है, अदरवाइज ये क्वेश्चंस आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे. मतलब आपको लगता है कि यार मैंने तो बस क्वेश्चंस देख लिए, आई एम जस्ट फाइंडिंग द वर्ड्स एंड देन आई विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. नो, इट विल नॉट हैपन, राइट? स्किल बेस्ड एग्जाम है, एटलीस्ट 60 to 70%, 70% हो तो बढ़िया. अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आपको होनी ज़रूरी है. स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू द keywords, modifiers that I was trying to explain you, right? So try and identify, is the passage explaining, is the passage analyzing, is there a narration that's happening, or there is a vivid description. और ध्यान रखिए कि प्ले विद द इंटेंटेड टोन ऑफ द ऑथर. तो कहीं आपको लग रहा है कि ऑथर तो माइल्ड ही तरीके से एक एरर को पॉइंट आउट कर रहा है, तो आप वहाँ पे हॉस्टाइल या स्कैथिंग टर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, राइट? सो यू हैव टू eliminate extreme options also. ऑथर कह रहा है कि ठीक है, एक पॉलिसी इज कैन फंक्शन वेल, इतना स्टेटमेंट दिया और बोले कि तो ऑथर इज एक्सप्लिसिटली इंडोर्सिंग द पॉलिसी, वी कैन नॉट से, राइट? सो कोई भी एक्सट्रीमिटी होती है जो ऑथर की टोन से स्ट्रॉन्गर टोन है, वो करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता. तो अलाइन योर आंसर विद द एक्चुअल टोन ऑफ द डिस्कशन दैट्स देयर इन द आर्ग्यूमेंट, राइट? तो चलिए आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक्सपोजिटरी टोन करेंगे. वी हैव ऑलरेडी डन एनालिटिकल, नाउ वी आर डूइंग एक्सपोजिटरी. तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं.
आप अगर नोट्स बनाते हैं तो क्विक पॉइंटर्स लिख के रखिए एक नोट्स बुक में, जहाँ पे सपोज जैसे प्रीवियस सीरीज जिसमें मैंने आपको एलिमिनेशन के टूल्स बताए थे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताए थे, स्ट्रैटेजी टू फाइंड द पर्पस बताई थी, या इसी सीरीज में एनालिटिकल टोन को समझाया, तो आपके पास क्विक पॉइंटर्स होने चाहिए रेडी, ताकि आप क्विकली रिवाइज करते रहें। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि रिविजन करते रहें, प्रैक्टिकली एप्लीकेशन देखें, पैसेजेस में मॉडिफायर्स ढूंढें, ताकि यू कैन कनेक्ट द डॉट्स। कई बार सिर्फ थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन है और आप उसको विद अ ब्रॉडर पिक्चर अगर अप्लाई नहीं कर पा रहे, फिर आप उतना बढ़िया एग्जाम में कर नहीं पाएंगे ना। चलिए, सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन। तो एक्सपोजिटरी का मतलब है ऑथर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, एक टॉपिक को क्लैरिफाई कर रहा है विद फैक्ट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कहाँ मिलती है आपको? अकेडमिक राइटिंग्स में मिलती है, टेक्स्ट बुक्स में मिलती है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में मिलती है। जब मैं आपको सपोज फिजन रिएक्शन कैसे होता है उसकी सारी डिटेल दे दूँ, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है उसकी सारी डिटेल दे दूँ, राइट, कोई मे बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक टॉपिक पे आपको एक पैराग्राफ दे दो, तो इस हर जगह हमारी जो टोन हो रही है वो कैसे फंक्शन कर रही है? वो एक्सपोजिटरी की तरह फंक्शन कर रही है, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, राइट। तो एक्सपोजिटरी इज एक्सप्लेनेशन इज बीइंग ऑफर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड फैशन में, ऑब्जेक्टिव फैशन में, फैक्ट्स के बेसिस पे, राइट। अब फोटोसिंथेसिस में क्या अपना ओपिनियन दे दूंगी ना, ऑब्जेक्टिव ही होना पड़ेगा टोन को। सो दिस इज हाउ नरेटिव टोन फंक्शंस। अब आपने डेफिनेशन पढ़ ली, अब मैं आपको एक पैसेज दिखाती हूँ जिसकी टोन एक्सपोजिटरी है, ताकि आप प्रैक्टिकली इन पॉइंटर्स को अप्लाई करके देख सके और आपकी जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है टोन्स की वो सॉलिड हो जाए, राइट। सो आई विल शो यू दिस एंटायर स्लाइड, आई विल स्टेप असाइड फॉर अ वाइल सो दैट यू कैन रीड द पैसेज नाइसली। आपको ज़रूरत लगती है कि मैम आप बोल रही हैं इतना, हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हम डेविएट हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। तो इट्स एंटायरली योर चॉइस हाउ वुड यू वांट टू वर्क ऑन इट, ठीक है। तो एक बार पढ़ के देखिए, इसको अच्छे से पढ़ के देखिए। ऑफ कोर्स मैं तो समझाऊंगी ही इन डिटेल, आई विल डेफिनेटली डू दैट फॉर यू, दैट आई गिव यू द राइट एक्सप्लेनेशन। चलिए, सो photosynthesis is the process by which green plants convert sunlight into energy. This occurs in the chloroplast of plant cells where chlorophyll absorbs light energy. तो आप देख रहे हैं अब photosynthesis कैसे हो रहा है। अब मैंने बोला कि प्रोसेस है, डेफिनेशन फॉलो कर दी, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, अपना ओपिनियन दे नहीं रही हूँ, ऑब्जेक्टिव टोन का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैंने कोई इमोटिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया, राइट। सो द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ टू मेन स्टेजेस, द एक्सप्लेनेशन कंटिन्यूस। तो जैसे अगर आप इसको ऐसे समझिए कि आप कोई एआई के समिट में गए और एआई के समिट में कोई प्रोफेसर साहब हैं जो आपको बेसिकली एक प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उनकी टोन एक्सपोजिटरी है। वहाँ पे अगर वो बीच में जोक क्रैक कर दे टू लाइटन द सिनेरियो, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाता है कि ओवरऑल टोन कैसी होगी, तो ओवरऑल टोन तो एक्सपोजिटरी रहेगी ना, जहाँ पे देयर इज द इंटेंट टू पास ऑन द इंफॉर्मेशन विच इज हाईली factual, which is providing a lot of content to the audience, enriching them, knowledge based जहाँ पे कहानी रहेगी, right? So the process consists of two main stages, the light dependent reactions and the Calvin cycle. तो अब ये पूरा fact है, ये पूरी information है, right? We're just passing on the information to the audience. So during the light dependent reaction, sunlight splits water molecules, releasing oxygen and generating energy carriers such as ATP. Again information है, factual है, आपको pass on करने की कोशिश कर रहे हैं, information transfer हो रही है। In the Calvin cycle, अब Calvin cycle कैसे काम कर रही है? Carbon dioxide is absorbed from atmosphere, converted into glucose, which serves as a food for the plant. This process is essential not only for plant survival but for maintaining atmospheric oxygen. अगर अब इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको ऑथर एक एसेंशियलिटी का पॉइंट रेज करके बता रहा है, विदाउट फोटोसिंथेसिस लाइफ ऑन अर्थ वुड स्ट्रगल। तो फैक्चुअल है ना, मैं ये सिर्फ मेरा पीओवी थोड़ी है कि फोटोसिंथेसिस के बिना लाइफ मुश्किल होगी, तो ये यूनिवर्सल पॉइंट है, राइट। दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू वन और टू पीपल, इट इज फॉर एवरीबडी। अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस व्हाई इट विल हेल्प साइंटिस्ट डेवलप सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एड्रेस एनवायरमेंटल चैलेंजेस सच एज डिफॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो आई एम श्योर अब आपने एप्लीकेशन देख ली तो क्लैरिटी मिल गई कि एक्सपोजिटरी
कैसे काम करता है। अब ये जो यहाँ पे ऑथर ने लेटर पैराग्राफ में जो आपको कुछ कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स दिए, तो वो तो यूनानिमस है, वो तो इंफॉर्मेशन ड्रिवन कंक्लूजन्स हैं, राइट? वो कोई पर्सनल बायसनेस, प्रेजुडिस, ओपिनियन पे ड्रिवन नहीं है। सो द एंटायर टोन इज वर्किंग इन एन ऑब्जेक्टिव फैशन with the intent to pass on the information, and that's where we should develop clarity कि होगा क्या। तो आप देखोगे बहुत सारे साइंस बेस्ड, साइंस इज वन जॉनर विच इज वेरी पॉपुलर इन GMAT आरसीज। तो जहाँ साइंस बेस्ड आरसीज होंगे वहाँ पे यूजुअली टोन एक्सपोजिटरी रहती है, राइट? क्योंकि कोई एक प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो जब आप वैसे भी साइंस बेस्ड पैसेजेस को डील करते हैं ना, तो थोड़े से आप ओवरवेल्म्ड रहते हैं। जो साइंस के बच्चे भी हैं, वो अगर कोर साइंस डोमेन पे काम नहीं कर रहे तो डिस्टेंस हो जाता है, बहुत टाइम हो जाता है। और जिसने पढ़ा ही नहीं है साइंस, मतलब 10th के बाद कॉमर्स था या ह्यूमैनिटीज था, वो तो और ओवरवेल्म्ड होके घूमते हैं। तो अंडरस्टैंड दिस कि आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है, आपसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे कर सकते हैं वो टेस्ट कर रहे हैं। आप कैसे इंफॉर्मेशन से असेंस ट्रैक कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है, राइट? कैसे आप ट्रैप्स में नहीं फंसते, कैसे अब आप जैसे ही कैल्विन साइकिल आ रहा, आप फ्रीज हो गए कि भाई तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं हुआ, मुझसे पैसेज नहीं होगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है, उनको भी पता है कि वेरिड बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आते हैं। तो एसेंशियली इट इज द टेस्ट ऑफ लॉजिक ओनली, राइट? तो कहीं भी ओवरवेल्म नहीं हो रही है, राइट? और जितना हो सके रीडिंग करिए, राइट? आरसीज को एस करने का बहुत बढ़िया तरीका होता है दैट यू रीड। So I always recommend that EON is one website where you get articles from different एरियाज। तो वहाँ पे अगर आप डिफरेंट एरियाज के आर्टिकल्स को रीड करेंगे तो आपको बहुत एज मिलेगा। तो कोशिश करिए, इफ नॉट मोर 30 मिनट्स ऑफ रीडिंग शुड बी डन। आप ज़्यादा नहीं कर पा रहे, आप 15 मिनट करिए, 15 मिनट तो करिए ही करिए। आधा घंटा कर पाते हैं, बहुत बढ़िया। अब आपने आर्टिकल को रीड करा, आपने क्या किया, उसके क्विक नोट्स बना लिए, राइट? पॉइंटर्स लिखे, मैपिंग की प्रैक्टिस करी। तो जो इससे इनिशियल फाउंडेशन से पहले वाली सीरीज थे उसमें हमने मैपिंग को बहुत डिटेल में डिस्कस करा है। तो आपने क्या किया, मैपिंग के नोट्स बना लिए। नाउ दैट विल रियली हेल्प यू। मैपिंग कर ली, उसके बाद आपने वोकैबुलरी के कुछ अगर आपको लगता है मुश्किल वर्ड्स हैं तो वो आपने डिकोड करने की कोशिश करी एक छोटी सी समरी बना लें। समरी बनाने के बाद आइडेंटिफाई कर लें कि पर्पस ऑफ राइटिंग क्या था। अगर टोन के लिए भी, हॉलिस्टिक टर्म टोन के लिए भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट। तो जो आउटकम होगा ना इस पूरी एक्सरसाइज का, वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को तो एनहांस करेगा ही करेगा, और पैसेजेस में आके की पकड़ को मजबूत कर लेगा। तो आपको फिर एग्जाम में जो मेंटल बैरियर होता है ना वो नहीं रहता, आपकी कंडीशनिंग हो जाती है। क्योंकि आप रोज अलग अलग तरीके के आर्टिकल पढ़ रहे हो, तो एग्जाम में कोई न्यूनेस भी होगी, वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करेगी, वो नेगेटिवली आपको इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे। और यही इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा आरसी देख रहा है एग्जाम में कोई नए टॉपिक का और इंटिमिडेट हो रहा है कि यार ये क्या आ गया है, तो मैंने कभी पढ़ा देखा नहीं हुआ, तो वो जो घबराहट होती है ना वो बहुत नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती है आपकी परफॉर्मेंस को। पर अगर आपने बहुत वेरिड रीडिंग कर रखी है, आप 30 दिन रोज अलग अलग टाइप का आर्टिकल पढ़ रहे हो, आप पूरा आर्टिकल फिनिश करने की कोशिश मत करो। आप देख लो कि यार मेरे को आधा घंटा है, 15 मिनट में रीडिंग करूंगी, 15 मिनट आई विल डू दिस फॉलो अप एक्सरसाइज सो दैट आई कैन यू नो डिराइव द मैक्सिमम बेनिफिट, राइट? हम ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी प्रेपरेशन को। आप 25 मिनट लिए एमलेसली बस रीडिंग करे जा रहे हैं, उस पर थॉट नहीं डाल रहे, राइट? उस आइडिया को प्रोसेस नहीं करने की कोशिश करें, पर वो एक्टिविटी फिर भी हेल्प तो करेगी, पर उतना नहीं करेगी जब आप एक रीडिंग को विद अ फॉलो अप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। तो जब फॉलो अप ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है ना, तो जो इम्पैक्ट है लर्निंग का वो मेनी अ फोल्ड हो जाता है। इसलिए हम स्टूडेंट्स को एडवाइस भी करते हैं, जैसे एक बार में 10 ही क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस करिए। आप 10 क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस कर रहे हैं, उनका एनालिसिस कर रहे हैं, टॉप नॉच क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत है। आपको समझ में आ रहा है इनकरेक्ट आंसर चॉइस कैसे क्रिएट हो रही है, कैसे मैं ट्रैप में फंस रही हूँ, तो आपको होलिस्टिक लर्निंग देगा ही देगा, राइट? अब उसके बाद अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, तो आपको जरूरी नहीं है 5 सेट रोज करने, आप 1 या 2 सेट करिए, बट डू इट विद अ रिग्रेस एनालिसिस सो दैट वी कैन maximize our output, right? So I hope this video helped you. We'll be meeting soon with more videos on tones. Till then, keep learning, stay consistent. God bless you. Vijay Bhav.